أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی تفسیر مختصر انداز کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ شروع سے لے کر کے ابھی تک جو تفسیر آپ کے سامنے آئی اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، رسالت کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر میں 100% کامیابی کا یقین، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حشر نشر، سوال جواب، جنت جہنم، جنتی اور جہنمی، ان سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے والی آیات کے اندر میں بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور بے ایمانوں، مشرکوں اور کفاروں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا تھا۔ قرآن کا طرز ہے، قرآن کا تذکرہ ہے کہ ہمیشہ جہاں وہ کافروں کا تذکرہ کرتا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا کا تذکرہ کرتا ہے، آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اس طریقے سے دونوں چیزوں کو قرآن پاک ساتھ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے مشرکین اور کفار کا بیان اور تذکرہ شروع سورت سے لے کر یہاں تک بیان فرمایا تھا۔ اب آج کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک کے اندر میں جب بھی تلاوت کرو تو اس کا معنی اور مطلب جو ہے آسان ہے۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، چوکنا کرنے کے لیے آتا ہے، سامنے والے کی غفلت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا معنی خبردار ہو جاؤ، اللہ کا معنی سنو، اللہ کا معنی سنتے نہیں۔ اس طریقے سے سامنے والے کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو چوکنا کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، دھیان سے سنو، چوکنا ہو کر کے سنو۔ کیا سنو؟ ان اولیاء اللہ
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के औलिया और अल्लाह के दोस्त ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और न वो गम करेंगे और न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त वो हैं अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और अल्लाह से डरते हैं या तकवा इख्तियार करते हैं। इस आयत की तफसीर के अंदर में एक तो उलमा ने लिखा है कि एक तो है खौफ और एक है हुज़्न। उर्दू के अंदर में दोनों का तर्जुमा खौफ का किया जाता है या डर का किया जाता है। डरो मत, खौफ मत करो, उर्दू के अंदर में दोनों का तज़किरा ऐसा ही किया जाता है। लेकिन फसाहत और बलागत के जो उलमा हैं, अरबी की फसाहत और बलागत के जो जानने वाले हैं, इन्होंने दोनों के अंदर में फ़र्क कर दिया। खौफ किसको कहते हैं और हुज़्न किसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों के लिए, अपने औलिया के लिए दोनों चीज़ों का इनकार कर दिया कि अल्लाह के औलिया और अल्लाह के दोस्तों के लिए न तो खौफ होगा और न तो हुज़्न होगा। खौफ आइंदा ज़माने के अंदर में किसी चीज़ का अगर आदमी को डर लगे, आइंदा ज़माने के अंदर में, उस डर को खौफ कहते हैं। ला खौफुन अलैहिम, उन पर आइंदा ज़माने में कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा। और हुज़्न उस डर को कहते हैं कि आदमी गुज़रे हुए ज़माने के अंदर में कोई काम कर बैठा, उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई गुनाह हो गया या कोई कोताही हो गई। अब ये इसको डर लगता है कि अगर लोगों को मालूम हो जाएगा तो मेरी रुसवाई हो जाएगी, या लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो मुझे लोग बदनाम कर देंगे। गुज़रे हुए ज़माने के अंदर में कोई बात हो जाती है, उसका खौफ और उसका डर आइंदा ज़माने के लिए लगा रहता है, उसको कहा जाता है हुज़्न कहा जाता है। इसको खौफ को और हुज़्न को थोड़ा और ज़्यादा वजाहत से समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रात के वक्त के अंदर में निकल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ में थे। मक्का मुकर्रमा से निकलकर गार सौर के अंदर में, जो गार है, गुफा है, उसके अंदर में 3 दिन और 3 रात तक ठहरे रहे। जब मक्का वालों को पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग निकले, हिजरत करके चले गए, तो इन्होंने ऐलान किया कि 100 ऊँट इनाम के अंदर में दिए जाएंगे। नाऊज़ बिल्लाह, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ करके लाएगा या उनका सर लाएगा, नाऊज़ बिल्लाह, ये ऐलान कर दिया। इस ऐलान को सुनकर मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार, जितने भी मक्का मुकर्रमा से निकलने के रास्ते थे, उन तमाम रास्तों के ऊपर में चल पड़े। उनमें से बाज़ लोग गार सौर के पास में पहुंच गए। गार सौर जिन लोगों ने देखा हो, या अगर अल्लाह ताला मौका दे तो देखना चाहिए, नीचे से खुला हुआ है। ये मान लो कि ये टेबल है और नीचे से खुला हुआ है। आदमी यहाँ आकर के खड़ा रहेगा तो नीचे का नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस गार के अंदर में यहाँ जो बैठा हुआ है उसको सामने वाले के पाँव नज़र आएंगे। जैसे कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाए या कोई आदमी छुपा हुआ है तो नीचे पाँव उसके नज़र आते हैं। अगर आदमी बैठ करके झुक करके देखेगा तो बैठा हुआ नज़र आएगा, अगर खड़ा खड़ा देखेगा तो अंदर में कौन बैठा हुआ है ये नज़र नहीं आएगा। ये पोजीशन था। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार गार सौर के पास में पहुंच गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी ज़ात का डर नहीं था, उनको अपनी ज़ात के ऊपर में कोई ख़तरा नहीं था। ख़तरा और डर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, कि खुदा न खास्ता कहीं
तकलीफ न पहुंचा दे। मुशरिकीन पहुंचते पहुंचते जब गारे सौर के पास में पहुंच गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुशरिकीन के पाँव भी देखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया कि या रसूल अल्लाह, ये लोग यहाँ तक आ चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ला तहज़न, अब समझो, ला तहज़न फरमाया, ला तख़फ़ नहीं फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में जहाँ कहीं भी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का जो मसला आता है कि लाठी को ज़मीन में डालते थे और वो लाठी अजदहा बन जाती थी, सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन के ऊपर में डाली तो अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम खुद डरने लग गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ला तख़फ़, डरो मत, पकड़ो, तुम पकड़ोगे तो जैसी लाठी थी वैसी लाठी हम बना देंगे। तो वहाँ पर ला तख़फ़ का लफ्ज़ है। गारे सौर के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ये डर जो है, डर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लग रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टी तसल्ली दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में नाजिल फरमाई कि इद तक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। इस पर उलमाए किराम ने एक बात तो ये लिखी कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में मुखालफत इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसकी वजह से हिजरत करने के ऊपर में मजबूर हो गए। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार की मुखालफत यहाँ तक पहुँची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का ऐलान हो गया। ये सारी चीज़ें जो हुई ये गुज़रे हुए ज़माने के अंदर में हुई। इसी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पकड़े जाए तो आइंदा ज़माने के अंदर में कहीं तकलीफ़ पहुंचाई जाए, कत्ल किया जाए, न मालूम क्या क्या किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये ला तहज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़माने माजी के अंदर में 13 साल ज़िंदगी दावत और तबलीग की जो तुम्हारी गुजरी, इसके ज़िम्न में, इसके नतीजे के अंदर में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने तुम्हारी मुखालफतें की। अब डरो मत, इसकी वजह से आइंदा कोई तकलीफ़ तुमको पहुँचने वाली नहीं है। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। एक बात और है, थोड़ी सी इल्मी है, थोड़ी सी पेचीदा है, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा एक बात तो और भी हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 आदमी थे, गारे सौर के अंदर में 2 आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया ला तहज़न, डरो मत, घबराओ मत, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। माअना का जो लफ्ज़ है ये 2 या 2 से ज़्यादा के लिए बोला जाता है। हम आए, हमारे साथ बहुत से लोग आए तो ये जमा का सीगा बोला जाता है, माअना। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में मिस्र को छोड़ करके निकले और बहर कुलज़ुम के पास में पहुँचे तो बनी इसराइल ने देखा सुबह होने के करीब थी तो फ़िरौन अपने लश्कर के साथ इनका पीछा करते करते आ रहा था। बनी इसराइल ने देखा कि फ़िरौन जो अपने लश्कर के साथ में आ रहा है, आगे जो है वो बहर कुलज़ुम था। ये फ़िरौन जो डूबा है ये बहर कुलज़ुम के अंदर में डूबा है। बहर कुलज़ुम के अंदर में बहुत से लोग दरियाई नील कहते हैं, दरियाई नील के अंदर में नहीं डूबा। दरियाई नील जो है वो दरिया नदी को कहते हैं। नील नाम की जो नदी है मिस्र के अंदर में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, उसमें नहीं डूबा, बहर कुलज़ुम के अंदर में डूबा।
बहुत बड़ा समंदर, बहर कुलजुम। तो बनी इसराइल ने कहा कि अगर पीछे जाते हैं तो फिरौन और उसका लश्कर है, आगे समंदर है। और हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये मूसा, बनी इसराइल ने कहा, वो तो अपने अल्फाज में कहते थे कि बनी इसराइल ने कहा कि मूसा तुमने तो हमें यहाँ ला करके मरवा डाला। ये हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज थे। तो उस वक्त के अंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तसल्ली दी। बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि इन्न माइया रब्बी सयहदीन, इन्न माइया, वहाँ था गारे थौर के अंदर में माअना, हमारे साथ, और यहाँ पर है इन्न माइया, मेरे साथ। इस पर उलमाए किराम ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और सारी उम्मत ये दाई है और दाई थी, इसलिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ में है। और यहाँ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्न माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ में मेरा रब है, अनकरीब कोई रास्ता निकालेगा। इसके बाद में हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बंदा ज़ाहिर के खिलाफ जब कदम उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद ज़ाहिर के खिलाफ में आती है। समंदर को मारना, पत्थर को मारना, ये ज़ाहिर के खिलाफ है, अल्लाह का हुक्म है। ये वादी तीह के अंदर में मिस्र से फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस पहुँचते पहुँचते जो 40 साल तक वादी तीह के अंदर में भटकते रहे, वहाँ पर जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पानी को पत्थर के ऊपर में मारो। तो एक पत्थर के ऊपर में लाठी मारी, चश्मा फूट गया। लेकिन बनी इसराइल के अंदर में 12 खानदान थे, 12 कबीले थे, तो कहा कि नहीं, हर कबीले के लिए अलग पाइपलाइन चाहिए, हर कबीले के लिए अलग चश्मा चाहिए, अलग पाइपलाइन चाहिए, एक पाइपलाइन से काम नहीं होगा। 12 मरतबा लाठी मारी तो अल्लाह ताला ने 12 चश्मे फोड़ दिए। तो ये ज़ाहिर के खिलाफ अल्लाह का हुक्म माना तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर के खिलाफ मदद फरमाई। यह समंदर के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया, लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को निकाला। इसी लाठी को मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पर मारा तो वहाँ पर ज़मीन निकल आई, रास्ता बन गया। एक मरतबा लाठी मारी तो रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो यहाँ से निकलो। तो बनी इसराइल ने कहा कि हम तो 12 कबीले हैं, 12 खानदान हैं, एक रास्ते से नहीं जाएंगे, 12 रास्ते चाहिए। तो 12 मरतबा पीटा गया समंदर को, 12 रास्ता पड़ गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो। तो फिर बनी इसराइल कहने लगे कि ये बीच के अंदर में रास्ता हो गया और दोनों रास्तों के बीच के अंदर में पानी बिल्कुल जम गया है। तो ये कबीला वाला जावे और हो सकता है कि दूसरे कबीले वाले डूब जावे, इसलिए ऐसा करो कि दोनों रास्तों के बीच के अंदर में, आजकल हमारे अल्फाज के अतबार से कोई वेंटिलेशन जैसा बना दो, छोटी छोटी खिड़कियां बना दो, ताकि एक कबीला दूसरे कबीले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ बात करता 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 समंदर को पार कर जावे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने वहाँ भी वेंटिलेशन बना दिए और उस पार हो गए। उस पार हो जाने के बाद में भी जब वहाँ पर देखा कि कोई मंदिर है और मंदिर के अंदर में कुछ पुजारी लोग हैं और कोई उनका बुत है जिसकी वो पूजा और इबादत कर रहे हैं, इतना सारा हुआ। अच्छा, ये किनारे पर पहुँचे और फिरौन और उसका लश्कर बीच के अंदर में आया और अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को मिलने का हुक्म दिया तो फिरौन डूब गया और फिरौन का जो लश्कर था वो भी डूब गया। ये सारा मौजिज़ा बनी इसराइल ने देखा। और इसके बाद अगले किनारे के ऊपर में कुछ मंदिर था या बुत था, वहाँ पर लोग पूजा करते थे। तो कहने लगे कालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कहने लगे बनी इसराइल के मूसा
हमारे लिए भी कोई माबूद बनाओ, कोई माबूद मुतय्यन करो, कमा लहुम आलिहा, जैसा कि इनके लिए माबूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, कि तुम तो बिल्कुल जाहिल जट जैसी कौम हो, कुछ समझ में नहीं आता कि इतना इतना सारा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने अपना गैबी निज़ाम चलाया। अल्लाह के दुश्मन फ़िरौन को, उसके लश्कर को हलाक किया, पानी के अंदर में 12-12 रास्ते बना दिए, तो इसके बाद में भी अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इन अल्लाह माना के अंदर में मिस्र के एक आलिम हैं, अभी उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फरमाया कि ला तहज़न इन अल्लाह माना, इन अल्लाह माना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। तो हमारे साथ में होने को अरबी के अंदर में माइयत कहते हैं। माइयत, मैयत नहीं, माइयत, ऐन से माइयत, मैं मौलाना की माइयत में आया, यानी मैं मौलाना के साथ में आया। माइयत यानी साथ, दो आदमी साथ में चल रहे हैं कि भाई फलाना आदमी, क्या हम उनके साथ में आ रहे हैं, यानी हमारी माइयत के अंदर में वो आ रहे हैं। तो साथ होना ये माइयत कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये तसल्ली दी कि देखो हम गार के अंदर में छुपे हुए हैं और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं। अब अगर मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार बैठ जाएंगे और झुक करके अगर नीचे देखेंगे तो हम नज़र आ जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न, डरो मत, गम मत करो, घबराओ मत, इन अल्लाह माना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है, माइयत हमारे साथ में है। तो शेख मोहम्मद मुतवल्ली अश-शाअरावी मिस्री, जो बड़े मुफस्सिर थे रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने फरमाया कि माइयत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफत है, ये सिफत हमको हासिल है। गम मत करो, घबराओ मत, ला तहज़न, डरो मत, इन अल्लाह माना, अल्लाह ताला की माइयत हमारे साथ के अंदर में है। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व ताला की सिफत ये है कि वह युद्रिकुल अबसार वला तुद्रिकुहुल अबसार, ये अल्लाह की सिफत है। वह युद्रिकुल अबसार, अल्लाह की ज़ात निगाहों को देखती है, यानी सारी मखलूक को अल्लाह तबारक व ताला देखता है। वला तुद्रिकुहुल अबसार, लेकिन ये जो निगाहें हैं मखलूक की, इंसान है या जिन्नात है या जानवर है, वला तुद्रिकुहुल अबसार, अल्लाह की ज़ात को ये निगाहें देख सकती नहीं है। तो ये सिफत है कि अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात को देखता है, लेकिन सारी कायनात अल्लाह ताला को इस दुनिया के अंदर में रह करके देख सकती नहीं है। जैसे कि पहले वाले दर्स के अंदर में आया था कि जन्नत में जाने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला का दीदार और ज़ियारत नसीब होगा, लेकिन दुनिया ये महल नहीं है, ये जगह नहीं है ज़ियारत नसीब हो। तो अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफत है कि वो सारे मखलूक को, लोगों को देखता है और सारे लोग अल्लाह को नहीं देखते, तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाते हैं, तसल्ली देते हैं कि अगर बैठ भी जाएंगे नीचे और झुक करके अगर देखेंगे गार के अंदर में, तो हम तो उनको देख सकते हैं, मैं और आप मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को देख सकते हैं, लेकिन वो अगर बैठ करके झुक करके देखेंगे तो ला तुद्रिकुहुल अबसार, वो हमको देख सकते नहीं है। ये एक इल्मी बात थी जो अल्लाह तबारक व ताला ने ला तहज़न इन अल्लाह माना के अंदर में जो ज़िक्र फरमाई है। तो अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो अल्लाह के औलिया, विलायत दोस्ती को कहते हैं, वली दोस्त को कहते हैं। कुरान के अंदर में वली का लफ्ज़ भी आया, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु, तीसरे पारे के अंदर में है अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह वली है, वली यानी दोस्त है, किसका? अल्लज़ीन आमनु, उन लोगों का जो ईमान लाए। इस पर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो भी ईमान लाने वाला मोमिन
और मुसलमान हैं, ये अल्लाह का वली है। जितने भी ईमान लाने वाले हैं सब के सब अल्लाह के वली हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वली है। हमारे और आपके उर्फ के अंदर में जो वली कहते हैं कि फलाने अल्लाह के वली गुज़रे हुए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुज़रे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के औलिया गुज़रे, वली गुज़रे। उस विलायत से मुराद विलायत खासा है। एक है विलायत आम्मा और एक है विलायत खासा। ये विलायत आम्मा ईमान लाने की वजह से हासिल हो जाती है। आदमी मोमिन बन गया, अल्लाह का वली बन गया। लेकिन विलायत के साथ साथ, ईमान लाने के साथ साथ तक़वा है, और जितना ईमान उसका बढ़ता जाएगा और जितना उसका तक़वा बढ़ता जाएगा तो आदमी अल्लाह का महबूब और अल्लाह का वली बढ़ता जाएगा और बनता जाएगा। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईमान भी एक लिमिटेड चीज़ नहीं है, महदूद चीज़ नहीं है। ईमान के दर्जात, आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बल्कि अगली उम्मतों के अंदर में भी जो सैकड़ों साल की उम्र रखने वाले थे, इन्होंने भी ईमान के अंदर में ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन ईमान के दर्जात, तक़वा के दर्जात ये ख़त्म होने वाले नहीं है। इसीलिए विलायत के जो दर्जात है, आदमी अल्लाह का करीब बनता जाता है, करीब बनता जाता है, इसकी में कोई हद नहीं है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि बंदा इन्नल अब्द यतक़र्रबु इलल्लाहि बिन नवाफिल, बंदा जो है मोमिन बंदा अल्लाह ताला का करीब बनता है नवाफिल के ज़रिया से। नवाफिल का लफ्ज़ जब हमारे कान पर पड़ता है तो हमारे जहन के अंदर में नफल नमाज आती है नफल की जमा नवाफिल, कि नवाफिल पढ़ते 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 आदमी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। नवाफिल का माना ज़्यादती। नफल को भी नफल इसीलिए कहते हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं न ये फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, न सुन्नत गैर मुअक्कदा है, बल्कि ज़्यादा है, इसको कहते हैं नफल। ये नफल जो है नमाज के अंदर में, जैसे नमाज नफल है, इसी तरीके से माली जो हुक्म है उसके अंदर में भी नफल, माली अहकाम के अंदर में भी नफल है। जैसे सोना चांदी या रुपया पैसे का अगर आदमी मालिक बन जाए, जिसके ऊपर में ज़कात फ़र्ज हो जाए, तो ज़कात अदा कर दी, सदक़े फ़ित्र ईद उल फित्र के दिन में अदा कर दिया, उसके बाद में जो कुछ भी अदा करने का था वो अदा कर दिया, और कोई हाजतमंद ज़रूरतमंद आया या कोई मस्जिद मदरसा वाले आए तो जो फ़र्ज़ था वो तो अदा कर चुके, अब ये जो अदा करेगा ये नफल कहलाएगा। जो माली खर्च करेगा ये नफल कहलाएगा। एक मरतबा उम्रा कर लिया, एक मरतबा हज कर लिया, तो उसके ज़िम्मे जो हज और उम्रा फ़र्ज और जो वाजिब था वो अदा हो गया। अब दोबारा हज के लिए जाएगा तो ये उसका नफल हज होगा, उम्रा के लिए जाएगा तो उसका नफल होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नफली हज करने की जगह पर, नफली हज करने के बजाय नफली सदका करना अफजल है। और लोगों को यही कहते थे कि नफली हज करने के लिए जाते हो, इसके बजाय तुम नफली सदका कर दो, नफली सदका करना अफजल है नफली हज करने के मुकाबले में। और उसकी दलील और उसकी इल्लत, वजह और सबब ये बयान करते थे कि माल खर्च करने के अंदर में नफ्स खुशी होती है, जेब में से माल निकलता है तो नफ्स पर बोझ पड़ता है, वज़न पड़ता है। ख़ास करके अगर कोई हिसाब से जोड़ करके रखा हुआ हो कि ये फलाने काम के लिए, चीज़ों के लिए, और फिर निकालने का आए तो उस वक्त में नफ्स पर बोझ पड़ता है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे। लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद जब हज के लिए गए
तो हज से जब वापस आए तो आकर के लोगों को अपना मसला बदल दिया, कहा कि नफली सदका करने के बजाय नफली हज करना अफजल है। पहले ये कहते थे कि नफली सदका करना अफजल है नफली हज करने के मुकाबले में, लेकिन खुद जब हज करके आए तो कहने लगे कि नफली हज करना ही अफजल है नफली सदका करने के मुकाबले में। उस ज़माने के अंदर में, अब आज तो और ज़्यादा पब्लिक बढ़ गई, मुसलमान भी बढ़ गए, हर मौके के ऊपर में नफ्स खुशी होती है। पेशाब करने के लिए जाओ, वज़ू करने के लिए जाओ, खाने के लिए जाओ, हजर अस्वद को बूसा देने के लिए जाओ, तवाफ करने के लिए जाओ, सफ़ा मरवा के दरमियान में सही करने के लिए जाओ, और मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, जहाँ कहीं भी देखते हैं तो हर कदम के ऊपर में नफ्स खुशी होती है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नज़रिया और अपनी जो राय थी, ये हज का मौका जब मिला तो उन्होंने उसको बदल दिया। बहरकैफ अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो बेशक अल्लाह के औलिया और दोस्त ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर न कोई खौफ होगा और न गम होगा। दुनिया के अंदर में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, तो अल्लाह के वलियों को गम नहीं होता, अल्लाह के वलियों को फ़िक्र नहीं होती। कोई अल्लाह का वली है, बाकायदा अल्लाह का वली है, साहिब निस्बत आदमी है, घर के अंदर में कोई तकलीफ़ और मुसीबत आ गई या घर के अंदर में किसी का ऑपरेशन है तो उसको डर खौफ नहीं होता। उलमा किराम ने लिखा है कि खौफ और डर न होने का मतलब आखिरत के लिए कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अल्लाह पर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद में ऐसा तकवा इख्तियार किया कि आखिरत का उनको कोई खौफ और डर नहीं है। वरना तबई तौर पर और फितरी तौर पर जो खौफ और डर और हालात दूसरे लोगों के ऊपर में होते हैं वो अल्लाह वालों के ऊपर में भी आते हैं। अल्लज़ीना आमनु वकानु यत्तकून, अल्लाह वाले वो हैं कि जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून, और तकवा इख्तियार किया, तकवा इख्तियार करते हैं। ये तो ईमान वालों की अल्लाह तबारक व तआला ने अलामत और निशानी बयान फरमाई कि औलिया अल्लाह कौन है। औलिया अल्लाह की दो सिफत, अल्लज़ीना आमनु वकानु यत्तकून, ईमान लावे और तकवा इख्तियार करें। और तकवा के दर्जात जो है ये महदूद और लिमिटेड नहीं है, ईमान के दर्जात भी महदूद और लिमिटेड नहीं है। आदमी का ईमान बढ़ता रहता है और आदमी का तकवा बढ़ता रहता है। जैसा जैसा ईमान बढ़ता रहे और जैसा जैसा तकवा बढ़ता रहे तो ये बंदा अल्लाह का मुकर्रब और महबूब और वली और दोस्त बढ़ता रहता है। उनको क्या मिलेगा? लहुमुल बुशरा, उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है। फिल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में, व फिल आखिरा, और आखिरत के अंदर में। दुनियावी ज़िंदगी भी उनकी चैन के साथ में, राहत के साथ में, सुकून के साथ में गुजरेगी। दिल के अंदर में किसी किस्म की बेचैनी नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में हालात कैसे भी अगर बदल जाएं, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने वाले और अल्लाह का तकवा और डर इख्तियार करने वाले अंदरून के एतबार से, दिल के एतबार से वो मुतमईन होते हैं। ये तकवा का और ईमान का दुनियावी फ़ायदा है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और आखिरत के अंदर में भी उनके लिए जन्नत की खुशखबरी और बशारत है। इस पर एक और भी लंबी बहस है कि ईमान और ईमान के साथ में तकवा, और फिर तकवा का फ़ायदा, तकवा के भी बहुत से फ़ायदे हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। बहुत से फ़ायदे हैं तकवे के। अल्लाह ताला काम बना देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से मदद फरमाते हैं कि उसको वहम गुमान के अंदर में भी नहीं होता, और कोई ना कोई छुटकारे का उसके लिए रास्ता अल्लाह ताला निकाल देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत सुनाई, दुनियावी ज़िंदगी में भी बशारत और आखिरत के अंदर में भी बशारत। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के कलिमात जो हैं इसके अंदर में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में आखिरत में
अल्लाह वालों के लिए न कोई खौफ होगा, न कोई गम होगा, न कोई डर होगा, तो नहीं होगा। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह वालों के लिए, औलिया अल्लाह के लिए दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में भी खुशखबरी और आखिरत के अंदर में भी खुशखबरी। तो इसका कोई उल्टा नहीं होगा। ला तब्दील li कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के कलिमात और अल्लाह के बोल बदले नहीं जाते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान आदमी को नसीब हो गया, तक़वा इख्तियार कर लिया, अल्लाह का वली और दोस्त बन गया, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में चैन और सुकून की अल्लाह ताला ने बशारत सुना दी, और आखिरत के अंदर में भी जन्नत की अल्लाह तबारक व ताला ने बशारत सुना दी। तो ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी, ये बड़ी कामयाबी है। इसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला तसल्ली देते हैं कि वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं या और आपकी नबूवत का, रिसालत का वगैरह जो इनकार करते हैं और बुरा भला बोलते हैं, तो वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, उनका कौल और उनकी बात आपको गम में न डाले। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक ज़ोर और ताकत और गलबा तमाम का तमाम ये तो अल्लाह ही के लिए है। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक गलबा और ज़ोर और ताकत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह की यहाँ देर है, अल्लाह की यहाँ देर नहीं है। ये मक्की दौर के अंदर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा था, उस वक्त में ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए नाजिल फरमाई थी। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, उनका बुरा भला कहना आपको गम में न डाले। और एक वक्त आया, मुखालफतें बढ़ती गई, मुखालफत के नतीजे के अंदर में हिजरत करना पड़ी और मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा गए और वहाँ जाकर के फिर दीन का, दावत का काम किया। एक वक्त वो आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का मुकर्रमा के अंदर में वापस आए और मक्का फतह हो गया। तो ये उस ज़माने की बातें हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की जा रही थी। इतनी मुखालफत की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। उस वक्त में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तमाम ज़ोर और ताकत अल्लाह ही के लिए है। हुवा समीउल आलिम, वही सुनने वाला और जानने वाला है। अला सुनो, इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी, जोर और ताकत और गलबा क्या, सुनो अल्लाह ही के लिए हैं वो तमाम मखलूक जो आसमानों में है और तमाम मखलूक जो ज़मीनों में है, जिन्नात है, फरिश्ते हैं, और न मालूम अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूक है आसमानों में और क्या क्या मखलूक है ज़मीनों में। ये सब के सब अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत के अंदर में है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, अपने रसूलों के लिए जब मदद करना चाहे तो किसी भी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला इस्तेमाल फरमाते हैं। जैसे गारे सौर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी को भी इस्तेमाल फरमाया और कबूतर को भी इस्तेमाल फरमाया, और अबरहा को हलाक और बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे परिंदों को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, और नहीं इत्तिबा करते वो लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर जो शरीक ठहराते हैं। तो इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये इत्तिबा नहीं करते हैं मगर वहम का और गुमान का। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अक्ल पच्छों से काम लेते हैं, अक्ल से काम नहीं लेते, गौर व फिक्र से काम नहीं लेते। इसके बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई ज़ाहिरी, उसका तज़किरा फरमाया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया, रात को पैदा किया। लितस्कुनु फीही, ताकि तुम उस रात के अंदर में सुकून हासिल करो। वन्नहारा मुबसिरा, और तुम्हारे लिए दिन को दिखलाने वाला बनाया, रोशन बनाया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्माऊन, बेशक इसके अंदर में भी अलबत्ता बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह ताला की बातों को सुनते हैं
और अल्लाह की बातों को मानते हैं। रात के वक्त के अंदर में लोगों का आराम करना, सारी दुनिया आराम करती है। दिन के वक्त के अंदर में सारे लोग काम के अंदर में लगे हुए हैं। दूसरी जगह कुरान पाक ने जिक्र फरमाया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला रात को हमेशा के लिए रात ही बना के रखे तो कौन है दिन को लाने वाला। और अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन को हमेशा दिन ही बाकी रखे, रात न आवे, तो अल्लाह के अलावा कोई है कि जो रात लावे, या अल्लाह के अलावा कोई है जो दिन लावे। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्माऊन, बेशक इसके अंदर में अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के अहकाम को, कलाम को सुनते हैं और मानते हैं। इसके बाद में फिर मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना, इतनी सारी अलामतें और निशानियाँ बयान करने के बाद भी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो बेटा बना रखा हुआ है। सुब्हानहू, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। आइंदा कल अर्ज़ करें।